Hello students, welcome back to the video series of magnetic effects of current. Today we will be discussing the solenoid. About solenoid we will be discussing three things: what solenoid is, what is the magnetic field produced by the solenoid, and what are the uses of solenoid. This solenoid topic it's pretty much important for the examination point of view, and it's quite easy to understand. Simply solenoid is simple thing. You can see on the screen this is simply a wire. It's a copper wire. Copper wire, it's wound in the form of spring. It's rotated in the form of spring, and that copper wire is known as solenoid. Simple. We will take a copper wire, and we will wound that copper wire in the form of helix, as it's written over here. It's in the form of helix. Helix means it's simply spring. स्प्रिंग की शेप में हम इसको वाउंड करेंगे, रोटेट करेंगे, मींस एक शेप देंगे, स्प्रिंग वाली शेप, and that shape is known as solenoid. It's simple concept, simple thing. But one most important thing about the solenoid is इसकी जो लेंथ होती है, see you can see this is the length L. ये जो लेंथ होती है, it's very much large as compared to its diameter. Diameter छोटा होता है, but the length of this solenoid, this piece of copper wire, it's very large, and this piece of copper wire it's known as solenoid. इसी को हम solenoid बोलते हैं. Simple solenoid में ऐसे भी बोलूँगा, simple एक spring है made up of copper. Spring है made up of copper है, and उसकी जो length है it's large as compared to its diameter. That shape is known as solenoid. इसी shape को हम solenoid कहते हैं. Now magnetic field जो produce होता है solenoid में, means when we will pass current through the solenoid, it's a conductor. Copper wire है तो conductor है. तो जब इसमें से हम magnetic current pass करेंगे, magnetic field will be produced around this solenoid. इसके around magnetic field produce होगा, and that magnetic field will be equal to its mu naught and I. Mu naught, as I already said, it is permeability, magnetic permeability of free space, and n is the number of turns. You can see in the solenoid itself there are large number, there are many number of turns. There's the first turn, second, third, fourth. Means coil is to be rotated, coil is to be shaped in the form of spring, and spring has large number of rings. So these are the rings, means we call it, these are the turns. So in turns पे जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो इन टर्न्स पे जितनी ज्यादा टर्न्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है. एंड नंबर नेक्स्ट थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द आई मींस करंट कितना फ्लो हो जाएगा. जब भी करंट फ्लो हो जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर अराउंड सोलेनोइड, it will depend upon the current flowing through the, कितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा through the solenoid, उतना ज्यादा magnetic field प्रोड्यूस हो जाएगा. And number third important thing, that's it depends upon the nature. You can see over here, it depends upon the nature of the material. जो nature होता है मटेरियल का, उस पे ये डिपेंड करता है. nature means किस मटेरियल का, इट्स यूजुअली कॉपर, तो कॉपर का बना होता है. एंड हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस कंडक्ट की होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस. अगर किसी कंडक्ट की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा, एंड इफ the resistance is less in any conductor की resistance कम है, then the magnitude of current will be more flowing through that very conductor. So magnetic field produced around the solenoid by the current depends upon three factors. It depends upon the number of turns of the solenoid coil जो है इसकी कितनी turns है उस पर depend करता है. जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी इस कॉइल की, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड में कितना करंट फ्लो करता है उस पे भी ये डिपेंड करता है. नंबर थर्ड फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉइल. जो नेचर मटेरियल है इसका, जो जिस मटेरियल का बना होगा ये सोलेनोइड, उस पे भी, उसके नेचर पे भी ये डिपेंड करता है. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, वो अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, वो कैसी होंगी. दिस इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारे पास ये सोलेनोइड है, एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये दीज आर सेम, जैसे आपने बार मैग्नेट भी देखा था उसी के जैसे होती है. यू कैन सी लाइक ओवर हियर बार मैग्नेट, आप देख लीजिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. ओके, सो ये सर्कुलर लूप्स बनाते हैं. सेम इज इन द केस ऑफ
सोलिनाइड में भी ऐसा ही होता है, जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल में एंटर होती है, एंड these form the you can see over here, these form the circular loops, जैसे बार मैग्नेट में है वैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इसमें भी होता है। अब मसला है यहाँ पे देयर इज ए पॉइंट कि अब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि जो नॉर्थ पोल है इसका साउथ पोल है, तो कैसे डिटरमाइन होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट, लेकिन अब मसला है कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, पोलैरिटी हमें कैसे पता चल जाएगी, इस ये जो सोलिनॉइड है इसकी पोलैरिटी कैसे हमें पता चल जाएगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सोलिनॉइड, दिस सोलिनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जब इसमें से करंट पास होता है, दिस सोलिनॉइड एक्ट्स एज अ मैग्नेट, और तब तक ये मैग्नेट एक्ट करता है जब तक इसमें करंट फ्लो करता है। एज सून एज द करंट इज टर्न्ड ऑफ, जब हम करंट को टर्न ऑफ करेंगे, ये इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, मैग्नेटिज्म होता है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, खुद ब खुद डिमैग्नेटाइज हो जाता है। जब तक करंट इसमें फ्लो करेगा तब तक ये मैग्नेट बिहेव करता है। नाउ एक मसला यहाँ पे है कि इसकी पोलैरिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन, एंड पोलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन कैसे है, सी ओवर हियर यू कैन सी, यहां से देखो करंट ऐसे चल रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, करंट यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर मैं काम करता हूँ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करूंगा, यहाँ से चलेगा करंट सपोज, तो यहाँ से चलेगा ऐसे, इट विल बी लाइक दिस एंड इट्स एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे करंट इस वक्त क्लॉकवाइज है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है। अब जहाँ से करंट क्लॉकवाइज होगा वहां से पोलैरिटी डिफरेंट होगी, एंड जहाँ से करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज करेगा वहां से डिफरेंट पोलैरिटी होगी। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे दो लेटर्स लिखे, साउथ इट्स एस एंड इट्स एन। अब यहाँ पे एरो हेड्स देखिए, एस के एरोस, दिस एस, दिस एस, यू कैन सी दिस इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो एरो नीचे की तरफ है, यहाँ एरो ऊपर की तरफ है, सो दिस द क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर हम इसको मूव कराएंगे, इस एरो को आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ से आगे ले जाएंगे, मीन्स ये एरोज मूव कर रहे हैं किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे देख लिया एन के मामले में, एन देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। सो एन की जो डायरेक्शन है, इसकी जो एरोज की डायरेक्शन है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे जिस साइड से जिस फेज से करंट क्लॉकवाइज चलता होगा, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, दैट फेज is S, this south pole of the solenoid, means this phase, यहाँ से करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, so this will be south pole। अगर ये साउथ पोल है, ये खुद ब खुद नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर हम अब रिवर्स करते हैं डायरेक्शन, देखो अभी करंट यहाँ ऐसे चल रहा है, अब काम करेंगे दिस टर्मिनल्स चेंज करेंगे, दिस सपोज ये पॉजिटिव कर देंगे, ये नेगेटिव कर देंगे, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इट्स लाइक इट्स एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, एंटी क्लॉकवाइज मींस एन, okay, it's n, so this will be north pole। so polarity हम निकाल सकते हैं by the direction of current। अगर करंट जिस फेज से करंट क्लॉकवाइज चलता है, that phase is south pole of the solenoid, and जिस फेज से करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, that phase is north pole of the solenoid। ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं the polarity, means poles of the solenoid। अब जो solenoid है, it acts as a magnet, so इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, those are same as that of bar magnet। जैसे बार मैग्नेट की सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलिनॉइड की भी होती हैं। ओके, सो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, ये भी यहाँ पे भी जो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं। बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंटर करती है साउथ पोल में। यहाँ पे भी साउथ पोल नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है, साउथ पोल में एंटर करती है। इनसाइड बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे देख लो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलिनॉइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ एंड इनसाइड द नॉर्थ एट पोल्स। यूजेस ऑफ सोलिनॉइड, यूजेस क्या होती है इसकी। पहला जो यूज होता है सोलिनॉइड का, ए लॉकिंग मैकेनिज्म, लाइक डोर्स के जो लॉक्स होते हैं होटल्स के, ऑफिस के, कहीं पे भी जो डोर्स होते हैं उनका जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, सोलिनॉइड इज यूज्ड ओवर देयर, वहां पे सोलिनॉइड यूज होता है। देखो यहाँ पे एक पिक मैंने डाली है ऑन द स्क्रीन, ये लॉक, दिस इज द लॉक, इट्स मेड ऑफ, इसमें यूज हुआ है सोलिनॉइड। अब ये काम कैसे करता है, दिस इज द वायर, इसको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट कब देना पड़ता है, जब इसको अनलॉक करना पड़ेगा। मींस आपने एक बार इसको लॉक किया,
फिर इसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना पड़ता, ये खुद ब खुद लॉक रहता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आपको अनलॉक करना पड़ेगा देन यू हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू दिस लॉक, आपने इलेक्ट्रिक करंट इसको सप्लाई करना है तब जाके अनलॉक होता है। दिस इज द फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज, ये जो हेल्थ केयर रिलेटेड मशीन्स होती हैं वहां पे ये यूज होता है। लाइक डायलिसिस मशीन, जो किडनी की डायलिसिस होती है उन मशीन्स में ये यूज होता है। उन मशीन्स में क्यों यूज होता है, देखो जब हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं वहां पे जो मशीन्स हैं उन दे शुड बी मच मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। उनका जो एवेल्युएशन है, उनकी जो रीडिंग्स हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उन मशीन्स की, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होनी चाहिए। देयर शुड बी कोई भी डिविएशन नहीं होनी चाहिए। देयर इज जीरो एरर, जो एरर होता है वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात होती है। सो वहां पे जो एरर्स हैं वो जीरो होने चाहिए। सो उनकी लाइक डायलिसिस मशीन्स की जो हम बात करेंगे वहां पे सोलिनॉइड्स का यूज किया जाता है। वहां पे दो सोलिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं पर्सन का जो ब्लड फ्लो, मीन जब डायलिसिस होती है उस वक्त ब्लड फ्लो का कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि ना पर्सन को हाइपरटेंशन होना चाहिए, ना हाइपोटेंशन होना चाहिए। वो जो ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, रेगुलेटेड रहना चाहिए। सो उसके लिए सोलिनॉइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ द सोलिनॉइड, इट इज यूज्ड इन कार एयर कंडीशनिंग कंट्रोल। जो कार के एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स होता है, कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, मीन्स कब क्या एयर कंडीशनिंग गर्मी करनी है या सर्द रखना है कार को अंदर से या गर्म रखना है, सो देयर वी यूज सोलिनॉइड। और एक यूज इट्स यूज्ड जो इंटरलॉकिंग इन द गियर बॉक्स ड्राइव सेलेक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट इन द ड्राइव सिलेक्शन प्रोसेस। मीन्स इंटरलॉकिंग जो ये गियर बॉक्स होता है उनमें से मीन्स गियर जो चेंज करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं कि गाड़ी किस गियर पे चलेगी, उसमें सोलिनॉइड का यूज होता है। देयर वी यूज सोलिनॉइड। एंड नंबर नेक्स्ट इज ये जो जॉयस्टिक्स होते हैं, हियर आई हैव दिस पुट द पिक्चर ऑफ जॉयस्टिक। ये आप सब यूज करते हो गेमिंग के लिए, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो आप ये चीज यूज करते हो जॉयस्टिक। इसमें सोलिनॉइड यूज होता है किस लिए, टू कंट्रोल द डिजाइन फॉर द गेम्स दैट स्टिमुलेट द ड्राइविंग। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्टिमुलेट करने के लिए ये उस चीज को कंट्रोल करता है। सो जॉयस्टिक्स में भी यूज होता है सोलिनॉइड। दीज वर द